पहला सिचुएशन था अपना यहाँ पे admission of partnership firm, right? You know, ABCA is the existing company, so they decided to admit new partner. Partner's name is called as D partner, and after the admitting of D partner, this company is named called as ABCD Company Limited. So in this kind of situation is called as admission of partnership firm. Now this is the second way to reconstruct a partnership firm, is that retirement from the business, existing business. See, these are the partners, which is name of the partners is A, B, C, delimited partners, right? So C want to C want to decide to retire from the business due to reason of personal reason. So after the retirement of C, new business will be start with the name of ABD Limited, right? So that is called as retirement of partnership firm. Now third one situation is called as death of partnership firm. See, A, B, C, D, these are the partners. None of these partners, A was died due to the reason of accident. So after the retirement of death of the partners, the company cannot run their business with the name of A, because A is not A is not existing partner right now, right? As per company law, as per company law, पार्टनर शुड मस्ट बी एग्जिस्टेंस, उनका एग्जिस्टेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है वहां पे, और जिनका डेथ हो चुका है उनके नाम पे हम कंपनी नहीं चला सकते हैं वहां पे। तो नया नाम आ गया है यहाँ पे बीसीडी लिमिटेड कंपनी। सो दिस सिचुएशन को हम कहेंगे यहाँ पे डेथ कहेंगे। और लास्ट सिचुएशन इज कॉल्ड एज सी, ए बी सी डी, दीज आर द पार्टनर्स, ऑल पार्टनर डिसाइडेड टू डिसॉल्व देयर बिजनेस, टू वाइंड अप देयर बिजनेस due to reason of internal disputes. So this kind of situation is called as dissolution of partnership firm. So anything is happening in the partnership firm out of these things, so this situation is called as a reconstruction of the partnership firm. रिकंस्ट्रक्ट मतलब जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है, रिकंस्ट्रक्शन का मतलब होता है रिस्ट्रक्चर करना, रीडिजाइन करना, रिफॉर्म कर देना। जो एग्जिस्टिंग कंपनी है उसको रिफॉर्म कर देना। वो रिफॉर्म करने के तरीके अलग अलग होते हैं, वो 4 तरीके होते हैं। या तो आप किसी पार्टनर को एडमिट कर दो, या तो कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर बिजनेस में से रिटायर हो जाएगा, और या तो फिर किसी पार्टनर की डेथ हो जाएगी। और डिसोल्यूशन जो एक ऐसा सिचुएशन है, कंपनी बंद होना मतलब क्या होता है, इंसॉल्वेंट भी हो सकती है, या तो फिर बैंकरप्ट भी हो सकती है, या तो फिर इंटरनल डिस्प्यूट भी हो सकते हैं। There are so many reasons behind that to wind up their business. So winding up that business is called as dissolution of partnership firm. So this is the concept of reconstruction of partnership firm. Now let's discuss about the whenever there is a change in profit sharing ratio among the existing partners. See, this is another situation, you can say like this, reconstruction of partnership firm. जैसे पार्टनर्स का जो शेयरिंग रेशियो चेंज होता है, so automatically it will be called like reconstitutions. So rest of the points I have covered already, like this admission of partner, retirement, death and dissolution. See, अभी इसको नया ये अमलगमेशन का मतलब क्या होता है? अमलगमेशन का मतलब होता है when 2 or more company come together and starting with the new name, that is called as amalgamations. तो यहाँ पे मैंने आपको क्या बोला था कि भैया किसी कंपनी का वाइंड अप हो जाना, क्लोज हो जाना मतलब डिसोल्यूशन कहा था आपको, ठीक है। तो अब ये चेंज इन पीएसआर क्या होता है वो भी देख लेते हैं हम यहाँ पे, राइट। चेंज इन पीएसआर जैसे कि हमने सिचुएशन देखा था पहला वाला, मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जब चेंज होता है तो क्या होता है वो भी देख लेते हैं। Now change in PSR ratio among the existing partner means reconstitution of the firm whereby the profit share sharing ratio among all the partner changes. सभी पार्टनर का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है वो चेंज होता है। The change can be due to change in capital contribution or increased participation in management by one or more partners. अभी पीएसआर कौन से सिचुएशन में चेंज होता है? पहला सिचुएशन तो ये रहेगा, आपका कैपिटल कंट्रीब्यूशन रहेगा कि भाई आप में से जिसने ज्यादा कंट्रीब्यूशन लेके आएगा उसका वहां पे क्या हो जाएगा, प्रॉफिट ज्यादा बढ़ जाएगा।
या तो फिर जो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कोई अगर पार्टनर ज्यादा करता है तो उसका भी शेयरिंग रेशियो वहां पे ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि वो एक्टिव पार्टनर होता है, राइट। A change in the PSR among partners means one or more partners acquire share of profit in the business from another partners. जैसे कि यहाँ पे देख लो, ए कंपनी है, बी कंपनी है और सी कंपनी, मतलब तीनों का नाम क्या है, ये पार्टनर्स है, दीज आर द पार्टनर्स एंड नेम ऑफ द कंपनी इज एबीसी कंपनी। कंपनी का नाम है एबीसी कंपनी एंड दीज आर द पार्टनर्स विच इज नेम इज कॉल्ड एज ए बी एंड सी। ये तीन पार्टनर है यहाँ पे, ठीक है। अब ये सिचुएशन क्या कहती है वहां पे, एक्वायर शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द बिजनेस फ्रॉम अनदर पार्टनर। सपोज बी एक्वायर शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द ए एंड सी। Therefore, the aggregate amount of gain by one partner is equal to the aggregate amount of sacrifice by other partner. अभी सैक्रिफाइस का मतलब क्या होता है वो भी मैं बता देता हूँ यहाँ पे। मान लो यहाँ पे इनको 3 रुपए मिल रहे थे, इनको 3 रुपए मिल रहे थे और इनको कितना 3 रुपए मिल रहे थे। अब क्या होता है यहाँ पे, बी जो है ना ये एक्टिव पार्टनर माना गया, तो ये क्या बोलेगा अभी कि भाई आई एम द वर्किंग एक्टिव पार्टनर, सो आई एक्सपेक्टेड टू फ्रॉम यू I need of 4 rupees from both of you. So in this case, अब ये दोनों में क्या हो जाएगा, ये भैया ये जो भाई साहब है ना, तो ये वाला ये 2.5 ये करेंगे, शेयरिंग करेंगे, सैक्रिफाइस करेंगे, और ये 2.5 सैक्रिफाइस करेंगे और इनको 4 रुपए देंगे, यहाँ पे 4 रुपये देंगे यहाँ पे। मतलब ये और सी ने कितने पैसे सैक्रिफाइस कर दे, वहां पे 0.5 पैसे सैक्रिफाइस कर दे, 0.5 पैसे सैक्रिफाइस कर दे। आर गेटिंग में पॉइंट सैक्रिफाइस का मतलब क्या होता है, समझ में आ रहा है सबको? हाँ सर। वेरी गुड सुजल। हाँ सर। If share profit of one partner increase, then share of profit of another partner is decrease. अगर एक पार्टनर का इंक्रीज होता है तो दूसरे पार्टनर का क्या क्या होता है, वहां पे प्रॉफिट डिक्रीज होता है, क्योंकि पहले सबको 3 रुपए मिल रहे थे, बट बाद में क्या हो गया, सैक्रिफाइस रेशियो बन गया वहां पे। तो यहाँ पे ये क्या करेगा भाई साहब, अब ये दोनों सैक्रिफाइस करेंगे, right? They're getting right now 2.5 instead of 3 rupees, but one of the partner is getting more than earlier profit, that is called as 4 rupees. Example, Amit and Arun are partners in firm sharing profit in the ratio of 3:2. अभी यहाँ पे देख लेते हैं हम सिंपल एग्जांपल। Amit and Arun, they are the partners and they are sharing their profit and losses 3:2. They have decided to profit equally in future. It means Amit and Arun have entered into new agreement by which they change their profit sharing ratio. Because of the change, Amit sacrifice and Arun gains. अब यहाँ पे कौन है, अमित क्या है, अमित को क्या हो रहा है यहाँ पे, सैक्रिफाइस करेगा अभी यहाँ पे, और अरुण को यहाँ पे गेन हो जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पे इक्वल हो जाएगा ना, क्योंकि पहले के रेशियो में क्या हो रहा था, अमित को 3 रुपीज था, उनका रेशियो क्या था 3:2 था। इट मीन्स व्हाट, अमित वाज गेटिंग 3 रुपीज एग्जांपल एंड Arun was getting 2 rupees, but right now both are decided to get equal profit. It means equal, it means what, यहाँ पे कितना मिलेगा दोनों को भी 2.5 मिलेगा, 2.5 मिलेगा। अभी इस सिचुएशन में क्या ना, अमित सैक्रिफाइस करेगा, क्योंकि अमित का पहले का प्रॉफिट 3 रुपए था, अभी उसको 2.5 ही मिलेगा। लेट्स सी हाउ। अमित का कैलकुलेशन करते हैं हम यहाँ पे। अमित इज इक्वल टू 3/5 माइनस 1/2, इक्वल करना है अभी वहां पे हमें, बराबर है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो अभी यहाँ पे, 3 2 जा 6, 5 1 जा 5 एंड 5 2 जा 10 इज इक्वल टू 1/10। अभी क्या है, अरुण का करना है हमें यहाँ पे, अरुण इज इक्वल टू 2/5 माइनस 1/2 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या करेंगे 2 2 जा 4 राइट एंड 5 1 जा 5 एंड 5 2 जा 10 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है यहाँ पे, इसका मतलब अरुण को क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है यहाँ पे, कितना हो रहा है यहाँ पे 1/10 हो गया यहाँ पे फिर से, राइट। सी बीइंग नेगेटिव रिजल्ट इट इज अ गेन, यहाँ पे याद रखना, जिसको नेगेटिव हो रहा है ना उसको गेन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, याद रख, समझ में आ रहा है बेटा यहाँ पे। हाँ सर। जिसका नेगेटिव रहेगा ना उसको क्या हो जाएगा, वहां पे गेन हो जाएगा,
it is clear from the above example that Amit is sacrificing 1/10 share from his share of profit in the favor of Arun. Arun being the gaining partner should compensate Amit, the sacrificing partners, by paying goodwill, that is by paying an amount equal to the 1/10 share of the value of goodwill. अभी गुडविल का वैल्यू उसको शेयर करना पड़ेगा. अभी यहाँ पे देखते हैं एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे. सी let us discuss the proposition in the concrete terms. Suppose profit rupees 20,000. यहाँ पे प्रॉफिट दिया है rupees 20,000. यहाँ पे प्रॉफिट दिया है 20,000. एज पर ओल्ड रेशियो, अभी एज पर ओल्ड रेशियो कितना था यहाँ पे 3:2 था. हमारा राइट 3:2, मतलब इसको कितने मिलेंगे यहाँ पे 12,000 मिलेंगे अमित को, और इसको कितने मिलेंगे 8,000 मिलेंगे अरुण को. देन आफ्टर द चेंज इन PSR ईच पार्टनर वुड गेट 10,000. अभी जैसे PSR चेंज हो जाएगा, क्योंकि 1/10 आ गया, तो अभी आफ्टर द चेंजिंग ऑफ PSR बोथ पार्टनर विल गेट 10,000 ईच. 10,000 ईच. समझ में आ रहा है यहाँ पे. Amit therefore lost 2,000 and Arun gains 2,000. अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको 2,000 का लॉस हो रहा है और इस भाई साहब को 2,000 का गेन हो रहा है, राइट. So if the goodwill is valued at 40,000, Arun must pay 1/10 share of 40,000 to Amit. अब जो गुडविल जो रहेगा फर्म का, गुडविल जो रहेगा फर्म का, जो सैक्रिफाई ये जो पार्टनर होता है नेगेटिव वाला जिसका आ रहा है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, उसको वहां पे एग्जिस्टिंग पार्टनर को देना पड़ेगा वहां पे. जैसे कि यहाँ पे 40,000 ये क्या है आपका गुडविल है बाय 10, तो 4,000 जो है ना अभी यहाँ पे अमित, ये जो है ना क्या नाम है इसका अरुण, अरुण को यहाँ पे अमित को देने पड़ेंगे गुडविल. तो ये हो गया आपका यहाँ पे चेंज इन PSR पहला सिचुएशन. अब आगे चलते हैं हम लोग. एडजस्टमेंट ऑफ चेंज इन PSR रेशियो, इसमें क्या क्या एडजस्टमेंट होते हैं और उसमें कैसे फाइंड आउट करते हैं हम चेंज इन PSR. यहाँ पे पहला सिचुएशन क्या है, यहाँ पे डिटर्मिनेशन ऑफ सैक्रिफाइस रेशियो एंड गेनिंग रेशियो. सबसे पहले हम क्या करना है, डिटरमाइन करना पड़ेगा क्या है सैक्रिफाइस रेशियो कोई किसका है और गेनिंग रेशियो किसका है. अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपको याद रखना है सबसे इंपॉर्टेंट जो टर्म्स और कंडीशंस हैं यहाँ पे. अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस, either accumulated profit or losses, revaluation of assets and reassessment of liabilities and adjustment of capitals. अभी ये जो 5 पॉइंट्स जो है ना, जो PSR में क्या होते हैं एडजस्टमेंट होते हैं, अभी उसको हम 1 by 1 एक्सप्लेन करेंगे हम वहां पे. सबसे पहले क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ सैक्रिफाइंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो. सी इसमें क्या होता है वो देख लेते हैं. चेंज इन PSR मीन्स profit share of one or more partner decreases while that of other partners or partner increases. एक पार्टनर का डिक्रीज होगा तो दूसरे पार्टनर का इंक्रीज होगा. अब सैक्रिफाइस का मतलब क्या होता है, सैक्रिफाइंग रेशियो इज द रेशियो इन विच वन और मोर पार्टनर्स ऑफ द फर्म फॉरगो देयर शेयर ऑफ प्रॉफिट इन फेवर ऑफ वन और मोर पार्टनर्स ऑफ द फर्म. इसको बोलते हैं सैक्रिफाइस रेशियो. गेनिंग रेशियो मतलब क्या होता है, गेनिंग रेशियो जो होता है इट इज द गेन्ड शेयर इन प्रॉफिट ऑफ 2 और मोर पार्टनर्स इन टर्म्स ऑफ रेशियो. अब इसका जो फॉर्मूला रहेगा यहाँ पे, गेन्ड शेयर इज इक्वल टू न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर. मतलब इनको यहाँ पे गेन हो जाएगा इस सिचुएशन में, सैक्रिफाइस करने की जरूरत नहीं है. अब आपको जो समझ में आएगा इस एग्जाम्पल के बाद ही समझ में आ जाएगा कि सर सैक्रिफाइस क्या होता है और गेन क्या होता है. Let's discuss with the example number 1. Amit and Sumit. See, Amit और यहाँ पे सुमित दो नाम के पार्टनर्स हैं, right? And their profit sharing ratio is 2:1. It was decided by them to share profit equally with effect from the 1st April 2018. Now calculate sacrificing and gaining ratio. Now new PSR is equal to 1:1. That is called as equal ratio. सैक्रिफाइड शेयर इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर. अभी यहाँ पे हम कर लेते हैं सैक्रिफाइस किसका, यहाँ पे 2/3 था अमित का, यहाँ पे माइनस 1/2. 2 2 जा कितना होगा भैया यहाँ पे 4 and 3 1 जा 3 2 जा 5 इज इक्वल टू 1/,
3 to the 6 सॉरी 3 to the 6 ठीक है। अब यहाँ पे कौन है, सुमित है सुमित का कितना है 2/3 minus 1 right by 2 is equal to 2/2 2 into 2 कितना होगा भैया वहां पे, सॉरी इसका कितना यहाँ पे 1 है ना, सॉरी 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 2 1 जा 2 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6 इज इक्वल टू, यहाँ पे नेगेटिव आ गया, देखो यहाँ पे नेगेटिव बैलेंस आ गया, इसका मतलब कौन है यहाँ पे, गेन है भैया, यहाँ पे इसको गेन हो रहा है और इसको ये सैक्रिफाइस कर रहा है, समझ में आ रहा है अभी, यस और नो? यस सर। यस सर। अब आगे चलते हैं हम लोग। अभी ये जो सिचुएशन है आप लोग कर लो, ये जो सिचुएशन जो है ना आप लोग कर लो खुद, प्रॉब्लम कुछ समझ में नहीं आएगा तो फिर मुझे बोल देना, इज इट राइट? You can solve this one problem. यस सर। ठीक है सर।